اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان السات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الانعام کے آیت نمبر 153 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 153۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ پچھلی دو آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 10 احکامات ایسے بتائے ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں، جن سے بچنا ہے۔ شرک سے اس کی ابتدا ہوئی، اور وعدہ پورا کرنا، جو اللہ کے نام پہ وعدہ کریں، اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں، جو اللہ سے وعدہ کریں ان وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ اور ویسے بھی ہم نے پڑھا کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ وعدہ ہو تو وہ انسان نے پورا کرنا ہے۔ تو یہ وہ 10 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اس پہ غور کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں۔ ان کی خلاف ورزی گناہ کبیرہ ہے، اور ان کے اوپر سخت بوجھ اور سخت پکڑ ہے آخرت میں۔ اور یہ ہر حکم ایسا ہے جس پہ انسان بڑے آرام سے خود عمل کر سکتا ہے۔ صرف کیا ہے، ایک نیت اور یقین کی بات ہے۔ جب انسان دل سے ارادہ کر لے، نیت کر لے میں نے کرنا، تو مشکل نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جو انسان کہے کہ جی میرے پاس دولت ہوگی تو میں کروں گا، میرے پاس کوئی بہت طاقت ہوگی تو میں کروں گا۔ نہ اس میں کوئی خرچ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی محنت ہوتی ہے۔ ایک دل کی بات ہے کہ جب دل سے یہ یقین کر لیں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے تو پھر عمل کرنا آسان نہیں، صرف اور صرف نیت کا دخل ہے۔ اور کوئی کام اللہ نے کہا ہے کہ یہ مشکل نہیں ہے، ہر انسان کر سکتا ہے۔ اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یا وہ برادری والا نہیں ہے، یا پیسے والا نہیں ہے، یا کوئی بھی مسئلہ اس کے ساتھ۔ جب انسان کی عقل اور دل کام کر رہے تو اس کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ تو اللہ آگے فرما رہے تھے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے سیدھا راستہ۔ یہ جس راستے پہ زندگی گزار رہے ہو، یہ سائن بورڈ راستے میں دیکھتے جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ تم سیدھے راستے پہ جا رہے ہو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے اللہ کی طرف راستہ جو بالکل سیدھا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، باقی کسی بھی راستے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف اس راستے پر لو، کیونکہ صراط مستقیم ایک ہے، شیطان کے راستے بہت ہیں، بہت پگڈنڈیاں ہیں، بہت گروہ ہیں، بہت تقسیم ہیں، ایک ایک بات پہ، ایک ایک لفظ پہ، کپڑے پہننے پہ بھی گروہ بن گئے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور ہرگز نہ پیروی کرنا، ہرگز نہ جاننا۔ اگر منزل مقصود چاہیے تو صرف یہ ایک راستہ ہے، اس کے مائل سٹون دیکھتے جاؤ اور زندگی گزارتے جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ راستے پہ چلنا اور نہ پیروی کرنا اور راستوں کی۔ فَتَفَرَّقَا، تو پس وہ الگ کر دیں گے تجھے، جدا کر دیں گے تجھے، متفرق کر دیں گے تجھے، بِكُمْ، تم کو، عن سبیلہ، اس اصل راستے سے، اللہ کے راستے سے۔ باقی ہر راستہ بھٹکا دے گا، صرف یہ راستہ ہے جو ہمیں قرآن نے بتایا ہے، اور یہ دوسری دفعہ بتایا، اور انشاءاللہ تیسری دفعہ اس کی سورہ بنی اسرائیل میں مزید تفصیل آئے گی۔ اور یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو عطا فرمایا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، دیکھیں پھر آ گیا وصاکم، یہ ہے وہ وصیت، یہ ہے وہ تاکیدی حکم، یہ ہے وہ فرائض جس کے کوئی کہہ نہیں سکتا۔ زکوٰۃ تو تب دے گا جب اتنا مال ہوگا، نماز پڑھتے ہوئے بھی کچھ وقت لگتا ہے، کوئی انسان کی مشقت لگتی ہے، روزہ رکھتے ہوئے مشقت لگتی ہے، حج پہ مشقت اور پیسے دونوں لگتے ہیں، اس پہ ان 10 کاموں پہ کوئی مشقت نہیں، صرف ایک یقین کی بات ہے اور ایک ارادے کی بات ہے، اور یہ کرنا اختیاری ہے، زبردستی نہیں کرنا، اختیار انسان کا کرے یا نہ کرے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا فرض ہے، یہ میری تاکید ہے، یہ میرا حکم ہے، تاکہ تم پرہیزگار بنے رہو، تاکہ تم پرہیزگار بنے رہو۔ اور پرہیزگاری کے لیے یہ 10 اگر صفات موجود ہیں تو پرہیزگار ہے، ورنہ جو مرضی یہ کہتا رہو اور جو مرضی یہ کرتا رہو، وہ اللہ کے ہاں پرہیزگار نہیں۔ یہ پرہیزگار بننے کے لیے 10 کام ہیں۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذین احسنوا، پھر ہم نے عطا کی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو
कौन सी किताब? तौरात और इंजील। तमामन अलल्लज़ीना अहसना, और उसके ऊपर उस वक़्त हमने अपनी नेमतें मुकम्मल की। जो शरीयत थी सबसे बड़ी नेमत और ईमान की दौलत, वो हमने उस पर मुकम्मल की। व तफ़सीलन लिकुल्ल, और हर एक शरीयत के हुक्म की उसके अंदर हमने तफसील बयान कर दी। शरीयत के सारे हुक्म उसके अंदर मौजूद हैं। हुदम व रहमतन, हदायत और रहमत है। अल्लाह की सारी आसमानी किताबें जो पहली गुजरे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान भी, ये अपने वक्त के हिसाब से मुकम्मल है, और ये तो क़यामत तक मुकम्मल है। अल्लाह ताला की नेमत और मेहरबानी और उसका फ़ज़ल इसमें तमाम होता है, और इससे हदायत लेनी और अल्लाह की रहमत लेनी, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। यासीन पढ़ के मुर्दों की जान निकलने में आसानी के लिए तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हम समझने के लिए इसको नहीं पढ़ते। ये अल्लाह की रहमत है। लअल्लकुम, ताकि वो बिलिक़ाए रब्बिहिम युमिनून, इस किताब को पढ़ के जो क़यामत वाले दिन अपने अल्लाह के साथ मुलाकात होनी है, उसका वो यकीन कर लें कि ये हर अमल का, हर लहजे का, हर मिनट का, हर हरकत का अल्लाह को हमने हिसाब देना है। ये किताबें यकीन दिलाती हैं। ये किताबें अल्लाह की यकीन दिलाती हैं जो हमने पसे पुश डाली हुई है। वहाज़ा किताबन, और अब ये किताब है, और अब ये किताब है कुरान मजीद। अनज़लनाहु, इसको हमने नाज़िल किया। मुबारकन, ये बहुत बरकत वाली है, इसके अंदर खैर ही खैर है। मुबारकन होता है खैर कसीर, यानी इतना खैर कि इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता, जो ख़त्म नहीं हो सकता। खैर के ख़जाने, ये अल्लाह ताला की कुदरत के खैर के ख़जाने हैं। तो ये कोई आम किताब नहीं है। इंसान, ए कुरान पढ़ने वाले, तुम ये जो किताब पढ़ रहे हो, ये अल्लाह ताला ने उतारी है, ये अल्लाह का कलाम है, और इसके अंदर खैर कसीर है। फत्तबिऊहू, बस इसकी पैरवी करो। वक़्त पुराने गुजर गए, तमाम उम्मतों पे, तमाम लोगों पे अब इस कुरान की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की पैरवी करनी अब अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दी है। इसी की अब पैरवी करो। वत्तकू, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करे। अल्लाह ताला की रहीम की सिफ़त अगर चाहिए कि उससे फ़ायदा उठाना है, तो फिर इस कुरान को पढ़ना पड़ेगा, इस कुरान को समझना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के, सब किताबों को छोड़ के, जो जिसने भी लिखी हैं, जितने भी नेक बंदे ने, लेकिन ये कुरान से अल्लाह ताला की रहमत मिलेगी। कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह का तकवा इख्तियार करेंगे, तो अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक करार पाएंगे। अन तकूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताब अला ताइफ़तैन मिन क़ब्लिना, अहले मक्का से खिताब है और क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए खिताब है। ऐसा ना हो कि तुम कहो कि यहूद और नसारा पे तो किताबें हैं, क्योंकि वो बनी इसराइल तक महदूद थी ना। हमारे ऊपर किताब नहीं, उन दो ग्रोहों पे किताब है, यानी यहूद और नसारा पे। इन कुन्ना अंदरा सातिहिम लगाफिलीन, तो हम तो उसको न पढ़ा, ना हमें किसी ने उसको पढ़ाया, तो हम तो उससे ला इल्म हैं। तो अल्लाह, ये हमने कुरान दे दिया, और कुरान तमाम इंसानों के लिए, क़यामत तक आने वाले सब इंसानों के लिए दे दिया। इसको पढ़ें। ये ना हो आपके क़यामत वाले दिन उज़र कि तौरात और इंजील तो हमारे तक पहुंची नहीं है, वो तो बनी इसराइल तक थी, तो हम कैसे हदायत हासिल करते? हम तो उनके पढ़ने से माजूर और बेखबर थे। ये ले, अल्लाह ने कुरान दे दिया। ओ तकूलू लो अन्ना उन्ज़िल अलैनल किताबा, या कि तुम क़यामत वाले दिन ये कहो कि अगर हमारे ऊपर नाज़िल होती किताब, लकुन्ना, तो ज़रूर होते हम अहदा मिनहुम, उनसे ज़्यादा राह पाने वाले। अगर हमारे ऊपर कोई किताब आती, हमारे अंदर अगर कोई नबी आते, तो हम उनसे बढ़कर हदायत पाने वाले होते, यानी यहूद और नसारा से। वो तो अपनी किताबों पे अमल नहीं करते, हम वो अमल करके दिखाते। ये भी उज़र तुम पेश कर सकते थे। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? हुज्जत तमाम कर दी। अपनी हदायत को, मुकम्मल हदायत को पूरा पूरा वाज़े तरीके से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये किताब दुनिया वालों तक पहुँचा दी। अब किसी के पास क्या कुरान के बाद कोई बहाना नहीं है कि उसके पास कोई हदायत की चीज़ नहीं। फ़क़द जाअकुम बय्यिनातुम मिर रब्बिकुम, ये तुम्हारे रब की तरफ से यकीनन लाज़मन आ गई है, तुम्हारे पास ये आई है। बय्यिनतन, दलील के साथ, इल्म के साथ, हकीकत के साथ। मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। वहुदम व रहमत, इसके अंदर हदायत ही हदायत है और रहमत ही रहमत है। जैसे हर आसमानी किताब के अंदर होती है, लेकिन ये वो है कि जो
क़यामत तक के लिए सुन्नत ही सुन्नत है और क़यामत तक के लिए हदायत ही हदायत है और रहमत ही रहमत है। फमन अज़लम मिम्मन कज़ब बिआयातिल्लाह, उससे बढ़कर कोई ज़ालिम है ही नहीं कायनात में जो अल्लाह की आयत को झुटलाए। अब झुटलाने के एक तो ये होता है कि इसको माने ही नहीं कि ये अल्लाह का कलाम है, वो तो वैसे ही दीन इस्लाम से खारिज हो गया। और अगर कहते हैं कि जी ये अल्लाह की किताब है और इसको समझता नहीं, इसको पढ़ता नहीं, इस पर अमल नहीं करता, इसको समझ के पढ़ के उस पर अमल नहीं करता और ख़ुद भी और आगे अपने आने वाली नस्लों को भी और तमाम लोगों तक नहीं पहुंचाता, अल्लाह कहते हैं उससे बढ़कर कोई और शख्स सालिम हो ही नहीं सकता। वसदफ़ा अनहा, और इससे रुक जाता है। बाकी हर काम के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन पढ़ने पढ़ाने के लिए, समझे समझाने के लिए, अमल के लिए इसको समझने की कोशिश नहीं करता, इससे रुक जाता है। बस संभाल कर रखा हुआ है बरकत के लिए, खैर के लिए। सनज्ज़िल्लज़ीना यस्दिफ़ूना अन आयातिना सूअल अज़ाब, तो बहुत करीब, बड़ा जल्दी सज़ा देंगे हम उन लोगों को जो ख़ुद भी रुकते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं अल्लाह के इन अहकामात से। सूअल अज़ाब, बहुत बुरा अज़ाब हम उनको देंगे। कुरान के बारे में शकूक व शुबात पैदा करते हैं और कुरान पढ़ने पढ़ाने समझने समझाने वालों के बारे में शकूक व शुबात पैदा करते हैं, तो अल्लाह फरमा रहे हैं इनको बहुत सख्त अज़ाब है। ख़ुद भी रुके हुए हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। बिमा कानू यस्दिफ़ून, बवजह इसके कि वो लोगों को दीन से ख़ुद भी रोकते हैं और रुकते हैं। अब अश्काल पैदा की, इस जगह इस कुरान न पढ़ना, उससे कुरान न पढ़ना, इस मस्जिद में ना जाना, उसकी बात ना सुनना, नहीं, सब की बात सुने और उसके बाद जो अल्लाह ताला ने अक्ल दी हुई है उसके बाद परखें, इस कुरान को समझे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी से रोक देना, उसकी बात ना सुनो, उसकी बात ना सुनो, ये इंतहाई जहालत की बात है। सुनने के बाद इंसान उस चीज़ को परखे, कुरान में ख़ुद समझे, उसको जो उसको समझ आ जाएगी, अगर बात सही है तो बिल्कुल ठीक है, अगर गलत है तो दोबारा फिर उस तरफ ना जाए, लेकिन एक दफ़ा ख़ुद समझे, लोगों के कहने पे ना रुके। अल्लाह फरमा रहे हैं जो रुक रहे हैं और जिनकी वजह से लोग रुक रहे हैं या जिनको रोका जा रहा है, अल्लाह ताला उनको सख्त अज़ाब देगा। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हमसे गलतियाँ हो गई, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।